Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Yahya and I am your Islamiyat teacher. Welcome to class 6 lecture 1. The book that we will be following is Islamiyat 6 for secondary classes by Sajida Zaidi. So today we will be discussing reading our first chapter excluding Nazra, that is faith and prayers. Let's get started inshallah. Okay, the very first topic that we have in this chapter is Tawheed. And in this video, we will learn about Tawheed and a few basic principles and beliefs that Muslims have. Okay, Tawheed, belief in the oneness of Allah. Okay, let me tell you one thing. The text that you are seeing on your screen is from your book. You can take out your book and read it alongside me, or you can just watch this on video. The most basic belief of every Muslim is the Kalima Tawheed. No one can be a Muslim without believing in it. The Kalima has two parts, La ilaha illallah, which means there is no God except Allah, and Muhammadur Rasulullah, which means Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his prophet. The first part of the kalima is based on Tawheed and the second part is based on Risalat. That is, the first part of the kalima says there is no God except Allah. That is, it refers to the belief in Allah, and the second part says Muhammadur Rasulullah, that is, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the prophet of Allah. So Risalat refers to believing in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawheed means that Allah is one, Allah has no partners, no one except Him is to be worshipped. That is कि इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला ही हम सब के मालिक हैं, हम सब के खालिक हैं और वो ही इबादत के लायक हैं. Surah Ikhlas explains Tawheed in a few lines. It gives the concept of Tawheed clearly. Let's recite Surah Ikhlas and its translation. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Say, He is Allah, the one and only. Allahus samad. Allah, the eternal, absolute. Lam yalid walam yulad. He begets not, nor was he begotten. दैट इज़ कि ना अल्लाह ताला किसी की औलाद है और ना अल्लाह ताला की कोई औलाद है. वलम यकुल लहू कुफुवन अहद एंड देयर इज़ नन कंपेरेबल टू हिम. सो दिस इज सूरह इखलास, वन ऑफ द मोस्ट कम्प्रहेंसिव सूरत ऑफ कुरान. कि इसमें एक जो तौहीद का जो मैसेज है काफ़ी क्लियरली और थोड़े से अल्फाज में काफ़ी सारा मैसेज दिया गया है. Proof of Tawheed. Now someone may ask that how can we believe that Allah exists and that Allah is only one? There could be more than one God. So उसका हम प्रूफ देखते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम क्यों इस बात को मानते हैं कि अल्लाह एक ही हैं और हमारे जो खुदा हैं, जो खालिक हैं, वो एक ही हैं. We see that the system of the whole world goes on smoothly day after day, year after year and season after season. The sun always rises from the east and sets in the west. Night always comes after day. All the planets and the moon move in their own paths. Season come in the same order and so on. This proves that there is only one power that is running the whole universe. If there were more than one power, then there would be confusion all around. It proves that the master of the universe is just one, Allah. यानी अगर एक से ज़्यादा खुदा होते तो एक खुदा चाहता है कि इस वक्त दिन हो और हो सकता है दूसरा खुदा चाहता कहता नहीं इस वक्त रात हो, तो उनका आपस में ही झगड़ा हो जाता.
यानी अगर एक से ज़्यादा खुदा होते तो इस दुनिया का जो निज़ाम जिस तरह हम देख रहे हैं स्मूथली चल रहा है वैसा नहीं चल रहा होता। यानी इसका मतलब यही है कि इस दुनिया को, इस निज़ाम को चलाने वाले सिर्फ एक अल्लाह है। सो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ तौहीद, यानी कि एक खुदा होने का प्रूफ। अल्लाह's यूनिक क्वालिटीज़, तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम हैं उनमें से कुछ को हम डिस्कस करेंगे। If no one is like Allah, then surely there are qualities which no one but Allah possesses. Some of his सिफात और qualities are, that is कि अगर अल्लाह एक हैं और कोई अल्लाह की तरह नहीं है तो अल्लाह ताला की कुछ ऐसी सिफात भी होंगी जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह में हैं और किसी और में नहीं, और यहाँ हम उन्हीं का जिक्र करेंगे। नंबर 1, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड ऑल मैनकाइंड, ही इज़ आवर क्रिएटर, दैट इज़ खालिक। अल्लाह का एक नाम है खालिक, यानी अल्लाह ताला ने हमें बनाया और पूरी इंसानियत को बनाया, पूरी मखलूक़ात को बनाया, तो अल्लाह ताला का एक नाम कहलाता है खालिक। ही गिव्स नरिशमेंट टू ऑल हिज क्रिएचर्स, ही इज़ देयर प्रोवाइडर, दैट इज़ कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को सब कुछ, उनकी ज़रूरियात प्रोवाइड करते हैं, उनको खाना देते हैं, उनकी जो जो ज़रूरत होती है उनको वो प्रोवाइड करते हैं, तो अल्लाह ताला क्या कहलाते हैं? अर्राज़िक़, यानी प्रोवाइड करने वाले। ही इज़ द गिवर ऑफ लाइफ एंड डेथ, अल मुही वल मुमीत, यानी ज़िंदगी अता करने वाले और मौत अता करने वाले। नंबर 4, ही इज़ द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, अल मालिक, यानी पूरे कायनात के मालिक हैं, मास्टर हैं। नंबर 5, ही इज़ ऑल नोइंग, अलीम, यानी सब कुछ जानने वाले। नंबर 6, ही हैज़ नो नीड्स, समद, यानी कि अल्लाह ताला को किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नंबर 7, ही इज़ ऑल सीइंग, बसीर, यानी अल्लाह ताला सब कुछ देखते हैं, उनको सब पता है, सब उनके इल्म है, सब नज़र आता है। नंबर 8, ही इज़ ऑल हियरिंग, समीह, यानी वो सब सुनते हैं। नंबर 9, ही इज़ द लाइट, नूर। नंबर 10, ही इज़ ऑलमाइटी, कबीर, यानी सबसे बड़ी ज़ात, सबसे ताकतवर ज़ात अल्लाह ताला की है। So we have discussed Tawheed, that what is the belief of Tawheed, what we believe, and now we discuss what are our duties towards Allah, that is कि हम अल्लाह ताला को अपना खालिक मानते हैं, हम अल्लाह ताला को अपना राज़िक मानते हैं, हम ये मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी फिर कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, हमें वो भी पूरी करनी होंगी। जिस तरह पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन का रिलेशन होता है, उन आपस में उनकी कुछ ज़िम्मेदारियां होती हैं, इसी तरह हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं कि अल्लाह ताला हम पर इतने एहसान कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हम उसका शुक्र भी अदा करें और जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं वो भी मानें। बिलीफ इन तौहीद मीन्स दैट वी प्रे ओनली टू अल्लाह, यानी कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, एंड ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, और सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा रखें। दुनिया में अगर हम किसी पर भरोसा रखते हैं तो हो सकता है वो हमें धोखा दे दे, हो सकता है वो हमारी जो हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो हमने सोचा था, जो भरोसा किया था, वो पूरा ना कर सकें, वो भरोसा तोड़ दें। लेकिन अल्लाह ताला पर जब भरोसा करते हैं तो अल्लाह ताला अपना जो वादा है वो हमेशा पूरा करते हैं। We must be sure that only Allah can fulfill all our needs and solve all our problems. That is कि हो सकता है हमारे भाई बहन, हमारे वालिदैन, हमारे टीचर्स, हमारे रिलेटिव्स, जो भी हैं वो हमारी कोई ज़रूरियात पूरी ना कर सकें, उनके पास इतना इख्तियार ना हो, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी ना हो, लेकिन अल्लाह ताला के पास सब कुछ करने की कैपेबिलिटी है। सिर्फ अल्लाह ताला ही हमारी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं और वो ही हमारी मुश्किलात आसान कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। If we have complete faith in the power and greatness of Allah, we will fear no one else. दैट इज़ कि अगर हम इस बात को मानते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही सबसे ज़्यादा बड़ी ज़ात है, तो हम अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरेंगे। इट मीन्स वी मस्ट ऑलवेज सबमिट टू हिज विल एंड ओबे हिम, यानी कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो करें, और अल्लाह ताला ने जो हमें अहकामात बताए हैं हम उनको पूरा करें।
तो ये है बिलीफ ऑफ तौहीद, और तौहीद के हवाले से जो मुस्लिम्स के बिलीफ हैं वो हैं, और जो हमें ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी हैं उनके बारे में हमने बात की। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क ये है कि जो आपका चैप्टर है फेथ एंड प्रेयर्स, जिसको हमने आज शुरू किया है, आप उसका टाइटल पेज अपनी जो नोटबुक है उसमें बनाएं, और जो मज़ीद नेक्स्ट होमवर्क होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो आप जो आज हमने रीड किया आप उसको दोबारा रीड करें अपनी बुक से, और जो चैप्टर का टाइटल पेज है वो अपनी नोटबुक में बनाएं। फ़ी अमानिल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह का मतलब कि अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान में, और अल्लाह आपकी हिफाजत करे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।